سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح مختلف اور مقامات سے اس وقت حجابی طالبات کی بہت ساری ویڈیوز آئی ہوئی ہیں۔ ناظرین گرامی بہت زیادہ ہراساں کیا جا رہا ہے، طالبات بھی بڑی ہمت دکھا رہی ہیں، مختلف اسکولوں میں احتجاجات پر بھی بیٹھ گئی ہیں، اور کہاں پر لڑکیوں کو، مسلم طالبات کو چھیڑا جا رہا ہے۔ پہلے طلبہ گمچھا پہن کر کے آتے تھے، اب جنگل کے گنڈے کالج اور اسکول کے احاطے میں گھس کر کے لڑکیوں کو چھیڑنے کی اور حجابی لڑکیوں کو چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مختلف قسم کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ویڈیوز کے حوالے سے میں آپ کو رکھوں گا۔ تو وہیں پر جو ہے ناظرین گرامی کیوں ممتا نے یوگی کو بھوگی کہا، تو وہیں پر ایک شخص کی جان کس طرح راجدھانی ایکسپریس سے بچ گئی، اور اس کے علاوہ ناظرین گرامی ریاستی صدر کو بی جے پی کے رکن اسمبلی نے کیوں غدار کہا، اور اسلامی تعاون تنظیم نے بھی اس وقت جو ہے جو کچھ حجاب کو لے کر کے ہندوستان میں ہو رہا ہے اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے، اور بہت دیر کر دی مہماں آتے آتے۔ اب جا کر کے مسلم لیڈران کرناٹک کے بمبئی سے ملاقات کر کے میمورنڈم دیا ہے، وہ تصویر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو نتیش کمار نے حجاب کو لے کر کے بہار کے سلسلے میں کیا کہا، وہیں پر چینی کو جو کہ اس وقت پنجاب کی سی ایم ہے، ان کو کیوں کہنا پڑا کہ میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں۔ علی گڑھ کے کالج میں حجاب کی مخالفت میں کس طرح بھگوا گمچا پہن کر کے طلبہ پہنچے ہیں۔ اب ہنومان کی جنم بھومی پر ٹکراؤ شروع ہوا ہے، ہندو گروپ دونوں آمنے سامنے آئے ہوئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں تفصیلات کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے تبصرہ کروں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس وقت کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں۔ ناظرین گرامی آئیے ایک ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں جو کرناٹک کے مختلف اسکول سے آئے ہیں۔ سب سے پہلے میں منڈیا کے صادق پاشا سے ملانا چاہوں گا، جنہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ غوثیہ اسکول ہے منڈیا میں، وہاں پر جو ہے حجاب پہننے سے روک دیا گیا، حجابی طالبہ کو، ان کی بیٹی کو جو ہے حجاب نکالنے پہ مجبور کیا گیا، تو انہوں نے جو ہے پوری طرح سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا پرابلم ہے، شاید آپ کو حجاب نہ پہننے کی وجہ سے کوئی پرابلم نہ ہو، لیکن ہم اگر حجاب اتاریں گے تو ہمارے لیے پرابلم ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنے بچی کو جو ہے اسکول سے واپس لے گا۔ یہ منظر ویڈیو میں قید ہو گیا، اور صادق پاشا نے جو ہے میڈیا سے گفتگو بھی کی ہے۔ آئیے وہ کیا کہہ رہے ہیں سنتے ہیں، یہ کنڑا میں ہے، ضرور سنیے گا۔ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕಳಿಸಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ. ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ। ناظرین گرامی اب بجرنگ دل کے گنڈے اسکول کے احاطے میں بھی گھسنا شروع کر دیے ہیں۔ جی ہاں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب راستے میں حجاب پہن کر کے چلنا، اور ان کو جو ہے ان کی اصل میں مردانگی صرف حجابی خواتین کے پاس ہی چل رہی ہے۔ یہ اپنے ہجڑے پن کا کھلم کھلا ثبوت دے رہے ہیں بھگوا کے لوگ۔ جب اللہ اکبر کا نعرہ مسکان نے لگایا تو ان کو لگا کہ اس میں مذہبی شناخت ہے، لیکن یہاں باہر کے گنڈے باقاعدہ آتے ہیں اور زعفرانی شال اوڑھتے ہیں، بچیوں کو چھیڑتے ہیں، حجابی طالبات کو چھیڑتے ہیں اور جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو کیا اس میں مذہب نظر نہیں آ رہا ہے؟ آخر عدالتوں کو اور انتظامیہ کو کیا ہو چکا ہے
कि जो है इन भगवा गुंडों को, दहशतगर्दों को खुलेआम सांडों की तरह छोड़ दिया गया है, जो मासूम बच्चियों पर और हिजाबी तालिबात को परेशान करती नज़र आ रही हैं। ऐसे हालात में इस तरह के जो भी लोग हैं, ये वीडियो का हवाला बना करके पूरा अमन माहौल में भंग डालने की शिकायत पुलिस थाने में करनी चाहिए कि इन लोगों को आखिर इंतज़ामिया में और स्कूलों में दाखिल होने की इजाज़त कौन दे रहा है। तलबा का नाम लेकर के पहले ABVP के कुछ तलबा भगवा गमछा पहन कर के इस तरह के नारे लगाते थे, अब बाहर के गुंडे भी जो है अलग भगवा के गमछे ओढ़ करके आने लगे हैं और लगातार लड़कियों को छेड़ने लगे, बिलखुसूस मुस्लिम तालिबात को। आप इसको आवाज़ से सुने कि किस तरह से जो है इस वक्त परेशान करने की कोशिश हो रही है। ये मध्य प्रदेश से आ रही ये वीडियो है, यहाँ के एक कॉलेज से, जहाँ पर इन्होंने मुस्लिम तालिबात को, हिजाबी तालिबात को परेशान करने की कोशिश की। अब जो है इस सिलसिले में जैसे इन्होंने यहाँ हंगामा किया, मुताल्लिक़ा कॉलेज की जानिब से हिजाब पर उसके बाद पाबंदी लगाने की खबरें आ रही हैं। देखिए नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है इस वक्त परेशान करने की कोशिश हो रही है। इसको थोड़ा आवाज़ के साथ सुने, कुछ और भी वीडियो है जो आप लोगों के सामने रखना है। अनुशासन इनका ये कॉलेज में भी देखो अनुशासन PG कॉलेज। नाज़रीन गिरामी, आइए अब और एक कोडगू के निल्ली हुडिकीरी नामी इलाके से आ रही हमारी बच्चियों की बात करते हैं, जहां पर जो है स्कूल ने हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी। उस्ताद ने उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो जो है पूरी तरह से हिजाब की इजाज़त ना मिलने की वजह से स्कूल से बाहर आ गए। इस मौके पर वहाँ पर मौजूद मीडिया ने इसकी कवरेज की और फिर जो है तालिबात से बात करने की भी कोशिश की, तो तालिबान ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि ये हमारा हक़ है हिजाब पहनना और हम इसको हटा नहीं सकते, चाहे जो है तालीम की किसी भी तरह से नुकसान हो। नाज़रीन गिरामी, चलते चलते मैं कहना वाज़ेह तौर पर कहूँगा कि जो है इस वक्त मुस्लिम तालिबात के मुस्तक़बिल से यहाँ की हुकूमत, यहाँ का अदलिया खेल रहा है। हिजाब के नाम पर उनको तालीम से रोक रहा है, उनके जो हुकूक़ हैं उन हुकूक़ की तलफ़ी हो रही है, साफ़ और वाज़ेह अंदाज में देखने को मिल रहा है इस वक्त कर्नाटक में। आइए बच्ची क्या कह रहे हैं देखते हैं कन्नड़ा में। जैसे मैंने कहा कि उसका वही तर्जुमा है, लेकिन कर्नाटक के लोगों के लिए ज़रूर सुनाएंगे ताकि बच्चियों की हिम्मत अफजाई हो। ಅದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ತಟ್ಟ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ, ನಾವು ತಟ್ಟ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಟ್ಟ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು, ನಾವು ತಟ್ಟ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ನೀವು? ನಾವು ತಟ್ಟ ಬಿಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಈಗೇನು ಈಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ? नाज़रीन गिरामी, आइए एक और मैं आपको इस वक्त वीडियो दिखाता हूँ मुडिगेरी की। मुडिगेरी में भी तालिबात ने इल्ज़ाम लगाया है कि वहाँ की स्कूल इंतज़ामिया और वहाँ के प्रिंसिपल उनको पूरी तरह से जो है हिजाब के साथ अंदर तालीम हासिल करने की इजाज़त देने ही वाले थे। इसी दरमियान में पुलिस वहाँ पहुँच गई और वो धमकाना शुरू कर दिया, तो फिर जो है प्रिंसिपल ने उनको स्कूल से बाहर कर दिया हिजाब जो है निकालने के लिए। इसी सिलसिले में जो है नाज़रीन गिरामी, आप साफ़ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सब के सब एक साथ दुश्मन बने बैठे हैं। हर कोई जो है बच्चियों की तालीम को रोकने की कोशिश कर रहा है, हिजाबी तालिबात को आगे बढ़ने से रोक रहा है। ये मुडिगेरी की है। आइए इस तालिबा क्या कह रही है इसको सुनने की कोशिश करते हैं। ಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವಾಗಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಟೀಚರ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರ್ಯಾಶ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕಾಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಕಾಫ್ ತೆಗೆಯೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಅಂದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸ್ಕಾಫ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರು. ನಾವು ಯಾರು ತೆಗೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದೊಂದು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಚರು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸ್ಕಾಫ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತೆಗಿಯಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಸ್, ಸೊ ನಾವು ತೆಗಿಯಲ್ಲ. नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं एक स्कूल की जो शिरालकोपा से आ रही है। तालिबात यहाँ पर इस वक्त एहतिजाज कर रही हैं। इनका भी इल्ज़ाम है कि उनको जो हिजाब के साथ जो है दाखिला नहीं दिया गया क्लासेस में। और अफसोस का मकाम ये है नाज़रीन गिरामी कि ये बताया जा रहा है कि तालिबात का ताल्लुक़ जो है वो एक स्कूल मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल से है, और जो बहुत बड़े दावे करते हैं कि जो है वो मुसलमानों की तालीम को फ़रोग़ दे रहे हैं, उस स्कूल से इन तालिबात का है। इन्होंने भी हिजाब ना पहनने देने की वजह से जो है एहतिजाज दर्ज किया है। ये दावा करते इस वीडियो को शेयर किया है
किसी ने एहतिजाज कहा कि दरअसल ये एक मुस्लिम मैनेजमेंट की तालिबात है, वो दूसरे स्कूल की तालिबात की हिजाब की हिमायत में एहतिजाज कर रहे हैं, इस वजह से नहीं कि उनको स्कूल में दाखिला नहीं दिया गया। लेकिन दो तरह के दावों के दरमियान में ये दावा ज़्यादा सही लग रहा है कि यहाँ पर हमने कोशिश की स्कूल के सिलसिले में कई नंबर मिले, लेकिन कोई स्कूल का बोर्ड या इस तरह का नज़र आता तो ज़रूर इस सिलसिले में हम मज़ीद तहक़ीक़ करने की कोशिश करते। दो तरह के दावे हो रहे हैं। एक ये है कि ये मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल है जो दावा करता है कि कर्नाटक में जो है मुस्लिम तालिबात और मुस्लिम वालों की तालीम के फ़रोग़ को बड़ा काम कर रहा है, लेकिन उन्होंने ख़ुद हिजाब के साथ तालिबात को इजाज़त नहीं। दूसरा दावा इस वीडियो के साथ ये किया जा रहा है कि दरअसल तालिबात जो है वो हिजाब की हिमायत में, जो दूसरे स्कूलों में हिजाब नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर इस वक्त एहतिजाज कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा आवाज़ के साथ सुन लेते हैं। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद एक और बहुत ही अफसोसनाक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये किस स्कूल की है, किस स्कूल के अंदरूनी इहाते की है पता नहीं है। इसमें कुछ तालिबात, कुछ ख़वातीन जो है बुर्क़ा निकालते हुए नज़र आ रही है स्कूल में दाखिल होने से पहले या फिर क्लासेस में दाखिल होने से पहले। लेकिन यहाँ पर इनसे दूर जिन्होंने वीडियो बना रहे हैं वहाँ खड़े लड़के अवबाश किस्म के दहशतगर्द भगवा जो है रखने वाले, वो उनको छेड़खानी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब आपको शर्म नहीं आ रही है। यानी मतलब ये है कि आप बुर्क़ा पहन कर के हिजाब में आते हैं तब भी तकलीफ़ है, और आकर के जो है अपनी जितनी मुमकिन हो सके चारों ना चार तालीम हासिल करने के लिए मजबूर होकर के अगर वो बुर्क़ा निकाल कर के अंदर दाखिल हो रहे हैं तो वहाँ भी इनके साथ छेड़खानी हो रही है, अंदर कैंपस में भी। तो नाज़रीन गिरामी, उनकी वीडियोस बना करके भी वायरल करके उनको बेइज्जत करने की कोशिश हो रही है। अब ऐसे हालात में आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस तरह की जो है इस वक्त जो है सिचुएशन, किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई कौम इस तरह की बेइज्जती कब तक बर्दाश्त कर सकती है, ये भी एक अहम तरीन सवाल है। यानी कि कैंपस के बाहर आप जब आ रहे हैं तो वहाँ पर टीचरों की जानिब से उनको हरासा किया जा रहा है, उनको भरी महफिल में उतारने को मजबूर किया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं कुछ देर के लिए हम क्लास में बग़ैर बुर्क़ा हिजाब के बैठ जाते हैं, मान कर के अंदर दाखिल होते हैं तो अवबाश किस्म के ये हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल मुतासिब किस्म के दहशतगर्द तलबा उनको जो है निशाना बना करके उनको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी वीडियोस बना करके वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, चौतरफा तौर पर किस तरह से इस वक्त ज़हनी तौर पर परेशान किया जा रहा है हिजाबी तालिबात को, और ऐसे हालात में कोई अगर इन तमाम चीज़ों को दिल पर ले ले तो आगे जाकर की किस तरह की सिचुएशन और किस तरह का माहौल बन सकता है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। कॉलेज इंतज़ामिया को हो या स्कूल इंतज़ामिया को हो, इस तरह के अवबाश किस्म के लोगों को, लड़कों को रोकने की ज़रूरत है कि उनको इस तरह गुंडागर्दी करने ना दें, दूसरे कौम की बेटियों की इज़्ज़तों को उछालने की इजाज़त ना दें। लेकिन ऐसा हो रहा है और लगातार बाहर भी परेशान किया जा रहा है। जैसे मध्य प्रदेश की वो वीडियो देखा आपने, अंदरूनी सतह पर ये हालात हो रहे हैं। और कल हमने वो वीडियोस दिखाया जिसमें टीचर्स लगातार जो है इस वक्त, बल्कि एक वीडियो और वायरल हुई, वो मैं आपको दिखा नहीं पाया इसलिए कि उसमें दूसरे चैनल की जो है कॉपीराइट का मसला था। उसमें बाकायदा एक हिजाबी लड़की के सरों के बाल को पकड़ करके एक टीचर धकेलती हुई नज़र आ रही है जो हिजाब पहनी हुई थी। तो नाज़रीन गिरामी, मिन जुमला तौर पर यह है कि जो है मीडिया ने जो माहौल बनाया, जिस तरह की चीज़ें बनाई गई हैं, अब उसका अज़ाब हमारी हिजाबी तालिबात पर टूट कर पड़ रही हैं। इस सिलसिले में जो है इस वक्त पूरे कौम को सर जोड़ करके बैठ करके सोचने की ज़रूरत है कि क्या अब दूसरा कौन सा ऐसा हमारे पास मुतबादिल है जिसमें हमारी हिजाबी तालिबात को जो है पूरी तरह से उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सके, उनको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर हरासा होने से बचाया जा सके। ऐसे कौन से तरीक़े हैं पूरी कौम को जुट करके बैठना चाहिए। अगर इस मरतबा कौम नहीं बैठती तो कसम खुदा की आने वाली तारीख़ आपको भूल जाएगी और आपकी जो है बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा तनकीद होती रहेगी। ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं, अफसोस का मकाम ये है। देखिए, मैं कहता क्यों हूँ, इसलिए कि एक तस्वीर आप देख लीजिएगा। मामला कब से शुरू हुआ आप जानते हैं, और क्या क्या कुछ हो रहा है वो आप जानते हैं। अब जाकर के हमारे कर्नाटक के लीडरान को, चलिए देर से ही सही, मेहमान आए तो सही, अब जाकर के जो है उन लोगों को मेमोरेंडम पेश किया जा रहा है। अब आप चेहरों से पहचान लीजिए कि ये लीडरान कहाँ के हैं और किस पार्टी से इनकी वाबस्तगी है। आइए नाज़रीन गिरामी, अब इस सिलसिले में नेशनल सतह पर भी तनकीद हो रही है पूरी तरह से पर्दे को लेकर के, इसलिए कि जो है
OIC इस्लामी ताउन तंजीम ने गहरी तशवीश का इजहार किया। ये भी बड़ी देर से सामने आए हैं। इन्होंने ट्वीट किया है इस वक्त। जी हाँ, इस्लामी ताउन तंजीम ने हिंदुस्तान में मुसलमानों पर किए जा रहे हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहिर ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि कर्नाटक हिजाब तनाज़ा मुस्लिम ख़वातीन को ऑनलाइन तशद्दुद का निशाना बनाने और हरिद्वार धर्म संसद में मुसलमानों की मुबैना नस्ल कुशी जैसे बयानात पर ज़रूरी इक़दामात लिए जाएँ। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मालूमात देते हुए OIC ने ट्वीट किया है, इस्लामी ताउन तंजीम ने हिंदुस्तान की रियासत उत्तराखंड के हरिद्वार में मुसलमानों की नस्ल कुशी से मुतालिक हालिया अवामी मुतालबात पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया। इसने सोशल मीडिया साइट्स पर मुस्लिम ख़वातीन को हरासा करने के वाक़यात के साथ साथ जनूबी रियासत कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद करने की इत्तलाआत पर भी तशवीश का इजहार किया है। जिद्दा में OIC के जनरल सेक्रेटरी ने पीर के रोज़ जारी करदा एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों और उनकी इबादतगाहों को निशाना बनाने के लिए मुसलसल हमले, मुख्तलिफ रियासतों में मुस्लिम मुखालिफ कानून साजी का हालिया रुझान और मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते हुए वाक़यात इस मुल्क में इस्लामोफोबिया के फ़रोग़ पज़ीर रुझान की निशानदही करते हैं। OIC ने आलमी बरादरी बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा के मैकानिज़म और जिनीवा में कायम इंसानी हुकूक़ कौंसिल के खुसूसी तरीक़ाकार से मुतालबा किया है कि वो इस सिलसिले में ज़रूरी इक़दामात करे। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, देर से ही सही लेकिन OIC ने भी इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए अब जो है अक़वाम मुत्तहिदा तक इस तनाज़े को पहुँचा दिया है। अब आगे देखना है कि इस सिलसिले में किस तरह आलमी बरादरी जिस तरह से जो है हिजाब को लेकर के पूरी तरह से जो है इस मामले को मुसलमानों के ख़िलाफ़ बना कर के उनके ख़िलाफ़ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें किस तरह के फ़ैसले लिए जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, इस दरमियान में जो है नीतीश कुमार से बिहार में सवाल पूछ बैठे हिजाब तनाज़े को लेकर के, तो उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि ये जो है रियासत में हिजाब कोई अब इशू नहीं है, यहाँ मजहबी जज्बात का एहतराम किया जाता है। कोई जो है अपने मुँह पर हम खुद कहते हैं कि पहन कर के जाओ, मास्क पहन कर के जाओ, कोई सर पर कुछ ओढ़ लेता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। ये कोई इशू ही नहीं है कि जिस पर तबसरा किया जाए। आइए उन्होंने क्या कहा, इसको सुन लेते हैं। हम लोगों के बिहार में कि एक तरह से स्कूलों में और सब जगह काम है, लेकिन वही चीज़ है, कोई सिर के ऊपर कुछ अगर लगा लिया तो क्या मतलब। हम ही लोग तो सबको कह रहे हैं कि मास्क पहनो, है तो कोई का मनवा करके ऊपर का, तो सब चीज़ पर क्या बहस करने की ज़रूरत है। हम लोगों के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है। देखिए, एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी जानिब अलीगढ़ में क्या हुआ, भगवा गमछा पहन करके पहुंच गए। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ थाना इलाके के गांधी पार्क इलाके में वाक़ धर्म समाज डिग्री कॉलेज के कुछ तालिब इल्म गले में भगवा गमछा, रुद्राक्ष और माथे पर चंदन का तिलक पहनकर क्लास के अंदर पहुंचे। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। कॉलेज कैंपस में भगवा गमछे पहने तलबा का एक ग्रुप इंतज़ामी इमारत के सामने पहुंच गया और तलबा ने हिजाब के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर दिया। इस मुजाहरे के दौरान तलबा ने टोपी बुर्का बैन करो के नारे लगाए। मुजाहरे को देखते ही कॉलेज इंतज़ामिया वहां पहुंची तो तलबा और तालिबात ने मिलकर DS डिग्री कॉलेज के प्रॉक्टर को हिजाब के खिलाफ मेमोरेंडम सौंपा है। वह गए नाज़रीन गिरामी, इनको भगवा गमछे ओढ़ने से किसने रोकाया? भगवा गमछे ओढ़े, पहने, भगवा लिबास पहने, कौन रोक रहा है? ना ही किसी ने आज तक रोका है और आगे कोई रोकने वाला है। ये तो आपकी आज़ादी है, लेकिन आप जिस तरह चाहते हैं उसी तरह जियो, लेकिन दूसरों को भी तो उसी मज़हब के मुताबिक रहने दो। देखते हैं कि कब तक आप भगवा गमछे ओढ़ करके आते रहेंगे। ये सारी जो है तमाशा खड़ा करने की कोशिशें हो रही है। नाज़रीन गिरामी, वह गए नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को योगी के बजाय भोगी बोल दिया है ममता बनर्जी ने। जी हाँ, वो एक सन्यासी नहीं है बल्कि वो एक भोगी हैं। ये कहते हुए जैसे ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ पर जो है तबसरा किया तो ये खबर सुर्खी बन गई है, योगी नहीं बल्कि भोगी। वह कई नाज़रीन गिरामी, अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो यूपी को पहले जो है इस तरह के लोगों से बचाना होगा। ये कहते हुए उन्होंने जो है जैसे अपील की यहाँ पर एक बयान में, तो उनका इस योगी को निशाना बनाना, तनकीद बनाना पूरी तरह से जो है इस वक्त सुर्खी बन गया, योगी नहीं भोगी कहते हुए। नाज़रीन गिरामी, इस तरह खबर आ रही है कि एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो आज बहुत ज़्यादा वायरल हुई कि मुंबई में किस तरह से एक शख्स तेज़ रफ्तार ट्रेन से बच निकला। जी हाँ, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आपने भी इसको देखा होगा। ये यहाँ पर मुंबई की रेलवे क्रॉसिंग के करीब में
अचानक तेज़ रफ्तार बाइक के साथ पहुंचता है और सामने से राजधानी एक्सप्रेस आ रही होती है, लेकिन ये बाइक वहां फंसने की वजह से रेलवे पर बाइक नीचे गिर जाती है, लेकिन आदमी किसी न किसी तरीके से बचने पर जो है बच जाता है और ख़ुद की हिफाजत करने पर जो है कामयाब हो जाता है। इस तरह एक सेकंड में बच जाने की ये वीडियो इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर पूरी तरह से वायरल हो रही है। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर जो इंतज़ामिया की और रेलवे इंतज़ामिया की भी पूरी तरह से लापरवाही देखने को मिल रही। इस वीडियो में आप देखेंगे तो इतनी तेज़ रफ्तार जो है इस वक्त ट्रेनें यहाँ से गुज़र रही है, रेल गुज़र रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि ना यहाँ पर एक गेट डाला गया है, ना उस जानिब कोई गेट डाला जा रहा है। रेलवे की पूरी तरह लापरवाही। जब इस तरह की तेज़ रफ्तार ट्रेनें गुजरने की जगह पर आध घंटे पहले ही उनके गुजरने के वक्त का पता मालूम हो जाता है और जो है रेलवे क्रॉसिंग पर बड़े बड़े गेट लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से रेलवे इंतज़ामिया की नाकामी देखकर महसूस किया जा सकता है कि लोगों की जान किस तरह से जो है ख़तरे में डाल रही है रेलवे इंतज़ामिया। नाज़रीन गिरामी, आइए अब ख़बर की जानिब चलते हैं और वो ये है कि इस वक्त तालिबान ने पूरी तरह से अमेरिका को आड़े हाथों लिया है। जी हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि 7 अरब डॉलर के असासे किस तरह से जो है तकसीम करने की कोशिश की अमेरिका की जानिब से। एक तो पूरे अफ़गानिस्तान को बर्बाद कर दिया, खाना जंगी की सूरत में कितनी जानें ले लिया और इस दरमियान में उसके असासे भी मुंजमद किए। अब जब पूरे अफ़गानिस्तान में भुखमरी के हालात हैं तो ऐसे हालात में तो अमेरिका को अपनी जानिब से जो है पूरी तरह से उसकी मदद करनी चाहिए थी। बजूज़ इसके कि वो अपनी जानिब से उसकी मदद करता, उल्टे उसने उसी के असासे को मुंजमद करके अलग अलग बहानों से तकसीम करके अफ़गानिस्तान को पूरी तरह से वहाँ के लोगों को भुखमरी की जानिब धकेल रहा है। यही वजह है कि अब शायद सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है तालिबान का। तो अब इमारत इस्लामी के नायब तर्जुमान इनामुल्लाह समनगानी ने साफ और वाज़ेह तौर पर वार्निंग दी है कि अगर अफ़गानिस्तान की 7 अरब डॉलर के असासे बहाल न किए तो अमेरिका से मुतालिक पॉलिसी पर फिर हमें नज़रसानी करना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान के असासों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अगर ये खिलाफ वर्जी जारी रही तो फिर जो नरमी इस वक्त अमेरिका को लेकर के है अफ़गानिस्तान में, उस सिलसिले में दूसरी मरतबा सोचना पड़ेगा। ये कहते हुए मुबैना तौर पर साफ़ और वाज़ेह तौर पर पैगाम देने की कोशिश हुई है तालिबान यानी इमारत इस्लामी की जानिब से। इस वक्त ख़बर भी सुर्खी बन गई है। अब देखना यह है कि अमेरिका का इस पर क्या रद्द अमल सामने आता है। नाज़रीन गिरामी, पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी ने पीर के रोज़ इल्ज़ाम आयद किया कि उन्हें आज कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के जलसे आम से महरूम होना पड़ा, क्योंकि वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के दौरे के सबब उनके हेलीकॉप्टर को परवाज़ की इजाज़त नहीं दी गई। वज़ीर आला ने गुस्से में कहा, चरणजीत सिंह चन्नी वज़ीर आला है, वो दहशतगर्द नहीं है जो आप उसे होशियारपुर के लिए परवाज़ करने से रोक रहे हैं। ये कोई तरीक़ा नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला ने अपने हेलीकॉप्टर को परवाज़ के लिए मंजूर हासिल करने के लिए तकरीबन 1 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि वज़ीर आज़म के जालंधर दौरे के सबब इलाके को नो फ्लाई जोन करार दिया गया था। चन्नी को राहुल गांधी के होशियारपुर में मुनक़िदा जल्द आवाम में शिरकत के लिए चंडीगढ़ से परवाज़ भरनी थी, लेकिन आखिरकार उन्हें हेलीपैड से ही वापस लौट जाना पड़ा। इसी को लेकर के पंजाब की सीएम बड़े गुस्से में नज़र आए। नाज़रीन गिरामी, आइए एक अहम तरीन ख़बर आप लोगों के सामने रख कर के इजाज़त लूँगा आपसे, और वो है इस वक्त कर्नाटक और 2 इलाक़ों में एक अहम मसले को लेकर के क्या तनाज़ा चल रहा है। राम जन्मभूमि का मसला हल होने के बाद अब राम के प्यारे माने जाने वाले हनुमान की जाए पैदाइश का मसला जन्म ले चुका है। ताहम ये तनाज़ा 2 मज़ाहिब के दरमियान नहीं बल्कि 2 हिंदू ट्रस्टों के दरमियान है। एक आंध्र प्रदेश में और दूसरा कर्नाटक के दरमियान है, जो हनुमान जी की जाए पैदाइश की शक्ल में अलग अलग मकामात का दावा कर रहे हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बमुकाबला हनुमद जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है। एनडीटीवी के एक रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश में टीटीडी या तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने तिरुमला पहाड़ी में वाक़े एक मंदिर और तीर्थ स्थल अंजाना दरी में सहूलियात की तरक्की के लिए एक तकरीब का मंसूबा बनाया है, जहां ये गुज़िश्ता साल अप्रैल में रामनवमी के मौके पर हनुमान की जाए पैदाइश के तौर पर मनाया गया था। तमाम कर्नाटक में श्री हनुमंद जन्मभूमि तीर्थ के ट्रस्ट इससे मुत्तफिक नहीं। इस ट्रस्ट का दावा है कि वाल्मीकि रामायण बताती है कि हनुमान की पैदाइश कशकंधा के अंजानहल्ली में हुई थी, जिसके बारे में माना जाता है कि हम्पी के पास तुंगा भद्रा नदी के साहिल पर वाक़ था। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है
हनुमान की जाए पैदाइश को लेकर के 2 ट्रस्टों में हो रहे इस वक्त जो है मुखालिफत और तनाज़े को लेकर के ये मामला ज़ोर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।